لندن میں پاکستان پروفیشنل فورم کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ملکہ برطانیہ سے رواں سال کے آغاز میں نائٹ ہوڈ ایوارڈ لینے والے ڈاکٹر شکیل احمد قریشی کے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تقریب میں پاکستان پروفیشنل فورم کے تمام عہدیداران نے شرکت کی۔ تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ شعبہ طب میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے پر سر ڈاکٹر شکیل احمد قریشی کو پاکستان پروفیشنل فورم کی جانب سے ایوارڈ دینے کا فیصلہ۔ ملکہ برطانیہ پہلے ہی ان کی خدمات کے اعتراف میں نائٹ ہوڈ ایوارڈ دے چکی ہیں۔ ڈاکٹر شکیل احمد قریشی کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ پاکستان پروفیشنل فورم کی ایگزیکٹو کمیٹی لندن میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت فورم کے چیئرمین ڈاکٹر میاں فرخ حسین نے کی۔ اجلاس کی میزبانی ایگزیکٹو کمیٹی کا رکن عتیق احمد نے کی، جبکہ نقابت کے فرائض تنظیم کے سیکرٹری شاہد ندیم نے ادا کیے۔ اس میٹنگ میں ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین نے آن لائن بھی شرکت کی۔ میٹنگ میں عبداللطیف، محمد شعیب شیخ، ملک تنویر، شاہد ندیم، عتیق احمد، ڈاکٹر جاوید شیخ، ڈاکٹر سائمہ نیاز، شبانہ بہار آغا، نجیب لطیف اور ڈاکٹر فرخ حسین شریک ہوئے۔ اجلاس میں آئندہ ہونے والی تقریبات کے انعقاد کے حوالے سے غور و فکر کیا گیا۔ اس سلسلے میں آئندہ ہونے والی تقریبات میں معروف ماہر طب سر ڈاکٹر شکیل احمد قریشی اور محمد شعیب شیخ کو ان کی خدمات کے حوالے سے ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ سر ڈاکٹر شکیل احمد قریشی پاکستان میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کے ساتھ برطانیہ آ گئے تھے۔ طب کے میدان میں ان کی خدمات اور ان کے تحقیقی مقالات نے گراں قدر کردار ادا کیا۔ سال رواں کے آغاز میں ملکہ برطانیہ نے انہیں نائٹ ہوڈ سے نوازتے ہوئے سر کا خطاب دیا۔ سن 2004 میں حکومت پاکستان نے ان کی پاکستان میں پیڈیاٹک کارڈیالوجی میں کی جانے والی کوششوں کے اعتراف میں انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ اجلاس کے اختتام پر تقریب کے میزبان عتیق احمد کی طرف سے پرتکلف ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ برمنگھم کے جامعہ مسجد سخی سلطان باہو میں اتحاد امت کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت آستانہ عالیہ سخی سلطان باہو کے سجادہ نشین صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا کی روک تھام اور مسلم کمیونٹی میں اتحاد و اتفاق کا قیام وقت کی ضرورت ہے۔ تفصیلات خاور راجہ کی اس رپورٹ میں۔ برمنگھم میں عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کی روک تھام اور مسلم کمیونٹی میں اتحاد و اتفاق کے قیام کے لیے جامعہ حضرت سخی سلطان باہو برمنگھم کے زیر اہتمام اتحاد امت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ آستانہ عالیہ سخی سلطان باہو کے سجادہ نشین صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری کی صدارت میں ہونے والی اس کانفرنس سے مختلف اہم سیاسی و سماجی اور مذہبی و دینی شخصیات نے خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اس وقت دنیا میں اسلاموفوبیا اور انتہا پسندی بڑھ رہی ہے۔ بھارت سمیت مختلف ممالک میں اسلام دشمن سرگرمیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ یکجان ہو کر جدید چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات اٹھائے۔ تقریب کے صدر صاحبزادہ پیر فیاض الحسن قادری نے کہا کہ مغرب میں مسلمانوں کو بے شمار مسائل درپیش ہیں، جبکہ تیزی سے مسلمانوں کے جذبات کو بھی ابھارا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اخلاقیات اور قانون کے دائرے میں رہ کر عالمی برادری پر دباؤ ڈالنا ہوگا کہ وہ اسلاموفوبیا کے تدارک اور مسلم مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے لیے اقدامات کرے اور دنیا کے اندر مسلمانوں کے دوہرے معیار کی پالیسی کو بھی ترک کیا جائے۔ بین المذاہب اور تمام درجات کے جو لوگ ہیں، فیملیز ہیں، خاندان ہیں، ادارے ہیں، علاقے ہیں، سب کو اکٹھا کیا جائے اور اس وقت ہندوستان کے اندر ہونے والے ظلم و تشدد اور کشمیر کے مسلمانوں کی داد رسی کے لیے جو ابھی موقع بنا ہے، اتحاد امت کا پیغام یہ ہے کہ ناموس رسالت کے خلاف جو باتیں ہندوستان میں کی گئی ہیں ان مجرموں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء نے بھارت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہندوستان کی گورنمنٹ کر رہی ہے، ریاستی دہشت گردی کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اس کی حکومتی سربراہ ان کے وزیروں نے یہ جو بیانات دیے توہین کی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم پوری قوم سے، مسلم امہ سے درخواست کرتے ہیں متحد ہو کر کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں اور اپنا پریشر بلڈ کریں۔ جانچ بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں اور جو مجرم ہے انہیں قرار واقعہ سزا دی جائے۔ اب پولیس نے ان کو بلایا ہے
लेकिन उससे आगे भी बढ़ना चाहिए कि उनको सजा भी होनी चाहिए और इस इंसानी हकूक की जो पामाली है और हेट स्पीच है इसको फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। आखिर में साहबजादा पीर न्याजुल हसन कादरी ने उम्मत मुसलमा की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात स्कॉटिश नेशनल पार्टी के वाबस्ता ब्लैक एशियन एथनिक माउंटेटरी ग्रुप की जानिब से दोहराने का एहतमाम किया गया, जिसमें हालिया बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब होने वाले 13 से जायद नस्ली अक़लियती उम्मीदवारों ने भरपूर शिरकत की है। पाकिस्तानी नयाद मेंबर ऑफ स्कॉटिश पार्लियामेंट को कौकब के अलावा दीगर मेंबरान कसीर तादाद में तकरीब में शरीक हुए। तफसीलात जानिए कैसर हबीब की रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड में हालिया बल्दियाती इंतखाबात में स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने मुल्की अक़लियतों के कई उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और अक्सर ने शानदार कामयाबी अपने नाम की। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा में स्कॉटिश नेशनल पार्टी के ब्लैक एशियन एथनिक मिनॉरिटी ग्रुप की जानब से इन अक़लियती उम्मीदवारों के एजाज में जोरहाने का एहतमाम किया गया, जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। कामयाब उम्मीदवारों की तादाद 13 है, जिन्होंने तकरीब में शिरकत की और अपनी कामयाबियों के हवाले से इजहार ख्याल किया। Especially being people from ethnic minorities, you question yourself a lot. That does go with time, and certainly after this re-election, with a 40% increase of first preference votes for my ward, for me in particular, that was a big stamp of approval, and I've come into this feeling completely freed. I only lost by 32 seats anyhow, so that's why I'm totally certainly proud of myself, and of course of the team who supported as well. But I must say, it's the BME network who really prepped me. Because it's my first time standing, I had absolutely no idea what to do. We stood, two of us, in a 4-seat ward. So the chances, and I was second on the list. We are on this island, in this globe, where there's so many different voices and experiences. And you know, when policy is implemented, it affects everybody. I want to extend my thanks to the network to provide support, also Safi and work with COCAB, and we had lots of support with Campbell here. जोहराने में पहली पाकिस्तानी नियाद मेंबर ऑफ स्कॉटिश पार्लियामेंट कोकब की खसूसी शिरकत के अलावा पूरे स्कॉटलैंड के मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बीम तंजीम की चेयरपर्सन फरा फरजाना ने तंजीम की कारकर्दगी पर गुफ्तगू की और तमाम अहदेदारों और मेंबरान का तारुफ करवाया। तकरीब में शरीक मुख्तलिफ काउंसलर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस हवाले से अपने अपने तजर्बात शेयर किए। बाद में 92 न्यूज से बातचीत करते हुए कामयाब उम्मीदवारों का कहना था कि आज की तकरीब इंतहाई शानदार रही। मुख्तलिफ अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाले कामयाब उम्मीदवारों के लिए ये पहली तकरीब थी। सब लोग शहरियों की खिदमत करने के लिए पुरजोश और पुरज़म हैं। Today I had the honour of attending the BAME SNP event, which was to connect and to reflect and to celebrate the fact that we have the most diverse council group of elected members that we've ever had. I'm delighted to be here today to support the vision for a more inclusive, more diverse, independent Scotland. I think if we all join together as allies and work together, support each other across all the affiliate groups and all the diverse and exciting communities within Scotland. Today we had the SNP BAME Network event in Edinburgh. Mashallah, this is a पहली बार हमने किया है after lockdown ये, और हम सब आए हुए हैं from all different parts of Scotland, Aberdeen, Dundee, Glasgow, Falkirk, Livingston as well, alhamdulillah. और हम यहाँ आए थे इकट्ठे होने के लिए to celebrate कि हमारे 13 ethnic minority councillors elect हुए हैं in the last local government elections. Dinner just now, it's just finished, and mashallah, I was so impressed. We've got 13 councillors that are elected, many of them are females. In fact, it's so impressive. We've got one of the youngest female Muslim Pakistani councillors in Glasgow, and then we've also got the very first BAME candidate, female candidate in Edinburgh. So it's really impressive to see, and it's actually heartwarming to see that we are now becoming part of the bigger community where we can influence, because we can't sit on the outside outlines and sort of look into politics. I am an SNP member and proudly an SNP BAME member, and I would just ask that you think about what values matter to you in your community, and if you really value that, make sure that you vote for independence when that opportunity comes around. But if you really want to make a difference, get involved. Join the SNP and join the SNP BAME network. The BAME network has done an absolutely amazing job, but we need more people from the ethnic backgrounds to come in and join into local politics. अरसा दराज के बाद ये पहला मौका था कि एक तकरीब सजाई गई जिसमें मेंबरान ने बाज़ाब्ता आपस में ज़ाहरी मुलाकात की। तमाम अफराद ने इस अमल को सराहा और ऐसी तकरीबात को आइंदा भी जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। जी, आज एडिनबरा स्कॉटलैंड के शहर में
बेम SNP नेटवर्क का एक डिनर का अहतमाम किया गया। इस डिनर का मकसद जो था वो स्कॉटलैंड से इलेक्ट होने वाले लोकल काउंसलर जो कि ब्लैक एशियन एथनिक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इकट्ठा करना था ताकि कम्युनिटी के साथ उनकी गपशप हो सके और वो हमारी जो भी एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं उनकी अच्छे तरीके से नुमाइंदगी कर सकें। कैसर हबीब, 92 न्यूज़। सऊदी अरब में फरीज़ा हज के लिए पहुंचने वाले पाकिस्तानी आज़मीन हज के काफ़िले मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा पहुंचना शुरू हो गए, जहां वो उम्रे की अदायगी करेंगे। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में फरीज़ा हज के लिए पहुंचने वाले पाकिस्तानी आज़मीन हज के काफ़िले मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पहुंचना शुरू हो गए। पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से मदीना मुनव्वरा से 13,500 से ज़ायद आज़मीन हज को खुसूसी बसेस के जरिए मक्का मुकरमा पहुंचाया गया, जहां हज मिशन के हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी आज़मीन उम्रा की अदायगी के बाद मक्का मुकरमा में क़याम करेंगे, जिनके लिए रिहायशी होटल समेत ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम की गई हैं। हुजाज कराम की रहनुमाई के लिए पाकिस्तानी हज मिशन का अमला 24 घंटे मामूर किया गया है ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इसी तरह आज़मीन के लिए तिब्बी सहूलियात भी फराहम की गई हैं। डीजी हज इब्रार मिर्जा और डायरेक्टर मक्का मुकरमा साजिद असदी समेत डॉक्टर अख्तर अब्बास और सैयद इमरान शाह का कहना है कि अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करना हमारा अव्वलीन फर्ज है, जिसको तन्ही के साथ अदा किया जाएगा और हमारी कोशिश है कि फरीज़ा हज की सआदत हासिल करने आए पाकिस्तानियों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जाएं। उमैर अली, नुमाइंदा 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने के लिए सऊदी खातून कोहपैमा नेली अतार ने पाकिस्तान जाने के लिए तैयारियां पकड़ ली हैं। पुरअज़्म सऊदी कोहपैमा की अगली मंजिल दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट है। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर समेत दीगर अफसरान ने सऊदी खातून कोहपैमा की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और कहा है कि इससे पाकिस्तान की सियाहत मज़ीद फ़रोग़ पाएगी। तफसीलात के लिए देखते हैं उमैर अली की रिपोर्ट। पुरअज़्म सऊदी खातून कोहपैमा का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान जाकर दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 फतह करने की तैयारियां शुरू कर दी। 17 जून को पाकिस्तान पहुंचेंगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सफारत खाना पाकिस्तान में सऊदी खातून कोहपैमा नेली अतार ने सफीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर समेत दीगर सफारती अफसरान से मुलाकात की और अपने अज़ाइम से आगाह किया। नेली अतार का कहना था कि उसकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान जाकर K2 को सर करे, जिसके लिए वो 17 जून से पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं, जहाँ वो K2 को सर करने की मुहिम के अलावा पाकिस्तान के दीगर इलाकों का भी सफर करेंगी। From Islamabad we're going to go to Skardu, and then from Skardu this is where we basically make our way to the mountain, and it's going to take us 1 week to get to base camp, and we're going to be spending about 45 days on the climb, inshallah, if weather is good. And hopefully when I come back from Skardu, I want to spend 2 to 3 days in Islamabad. I want to visit and spend time in Islamabad. And I'm so excited to see Pakistan in general. It's been a country I wanted to visit a very long time ago. So I'm very, very excited to not only go see the country, but inshallah climb the highest peak in the country. इस हवाले से सफीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर का कहना था कि पाकिस्तान में सियाहत के फरोग के लिए सऊदी खातून कोहपैमा का ये दौरा खास अहमियत का हामिल है। इससे अरब ममालिक का पाकिस्तान की सियाहत की जानब रुझान बढ़ेगा और सफारत खाना पाकिस्तान सऊदी अरब सियाहत के वीजे को आसान बनाते हुए एक दिन में वीजा जारी कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा सऊदी शहरी पाकिस्तान सियाहत के लिए जा सकें। टूरिज्म के हवाले से जैसे आपके इल्म में है कि हुकूमत पाकिस्तान की एक प्रायोरिटी है कि टूरिज़म को पाकिस्तान में प्रमोट किया जाए, और नेली जो कि पहली अरब खातून है कि जो K2 को सर करेगी, उसके विज़िट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में टूरिज़म अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करने के लिए। तो इसी सिलसिले में आज जो है हम इसको यहाँ से खुदा हाफिज़ कह रहे हैं। इंशाल्लाह इसके लिए हमने सारा बंदोबस्त कर रखा है पाकिस्तान में, और ये जब K2 इंशाल्लाह ये खैर खैरियत से सर करेंगी तो हमारी जो पाकिस्तान में टूरिज़म अपॉर्चुनिटीज़ हैं
उनके लिए एक बड़ी अच्छी प्रोजेक्शन की जो है वो का मौका होगा। सफीर पाकिस्तान समेत दीगर अफसरान ने सऊदी खातून को पैमा की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उन्हें पाक सरजमीन पर हर मुमकिन ताउन का यकीन भी दिलाया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। 16वें बुलान गल्फ अवार्ड्स का रंगारंग मेला अमारात की रियासत दुबई में सजने को तैयार है। लॉलीवुड के बड़े अवार्ड शो की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी फनकारों ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया। शो के ऑर्गेनाइजर ने शुरका और मीडिया को ब्रीफिंग दी। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी फनकारों की परफॉर्मेंसेज के एहतराम में सजाया जाने वाला 16वां बुलान अवार्ड शो इस बार अमारात की रियासत दुबई में होगा। 26 जून को दुबई में मुनक्कद होने वाले बुलान अवार्ड शो में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक से फनकार शरीक होंगे और अपने फन का मुजाहरा करेंगे। मुंतजमीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दुबई में मुनक्कदा बुलान अवार्ड का मकसद चारों सूबों की सकाफत को उजागर करना है। इस मौके पर गुलकारा गुलाब ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो तकरीब में परफॉर्म कर रही हैं। फनकार अपने मुल्क की सफीर की हैसियत रखते हैं। दुबई के जितने भी ऑडियंस हैं सबको कहना चाहूँगी कि आप जरूर आएं और इस अवार्ड शो को ज्वाइन करें और आप सब बहुत इंजॉय करेंगे। इस मौके पर गुलकारा गुलाब ने अपना मशहूर ज़माना गीत भी गाकर सुनाया। सोड़ी आँख वाला ढोला, सोड़ी आँख वाला ढोला, गल पाके चिट्टा चोला, गल पाके चिट्टा चोला, मैनू मार सुटदा है, सीना साड़ सुटदा है। शो में पाकिस्तान से गुलकार अदील बरकी, एनी ताहरा, गुलकारा गुलाब और दीगर फनकार परफॉर्म करेंगे, जबकि दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले फनकार भी बड़ी तादाद में अपने फन का जादू जगा कर शायकीन से दाद वसूल करेंगे। लाहौर के मकामी होटल में मुनक्कदा तकरीब से हाज़रीन खूब महसूस हुए। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर कोरोना का शिकार हो गए। जस्टिन ट्रूडो ने ट्विटर पर कोरोना में मुब्तला होने की इत्तला दी है। जस्टिन ट्रूडो ने अपने बयान में कहा कि मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, जिसके बाद मैं तन्हाई इख्तियार करके एहतियाती तदाबीर पर अमल करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत बेहतर है क्योंकि मैंने कोरोना वैक्सीनेशन करवाई हुई थी। ताहम उन्होंने आवाम से अपील की है कि अगर आपने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई तो लगवा लें। उनका कहना था कि जिन अफराद ने कोरोना वैक्सीनेशन करवा ली है वो बूस्टर शॉट्स लगवाएं। इससे कबल रवां साल फरवरी में भी जस्टिन ट्रूडो में कोरोना की तशखीस हुई थी। तभी आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।